Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Vice President Jagdeep Dhankar hailed Delhi's transformation under Lieutenant Governor Vinay Saxena, calling it game-changing. He praised the city's new green spaces and riverfront development, describing them as new lungs and a source of scenic and eco-friendly beauty. Dhankar expressed confidence that Delhi's residents will cherish these changes for generations. He believes the riverfront will rival the best in the world. Delhi is capital of Bharat, and what I see around here, the work done by the Lieutenant Governor Vinay Saxena is a game-changing work. People of Delhi will remember it forever, that his efforts are bearing fruits and Delhi is being provided with new lungs, new power, because that was a big challenge. And I am sure more and more Delhi people will enjoy the scenic beauty, the eco-friendly beauty, the vegetation, flowers in thousands varieties, and this is going to be amazing. I am sure the riverfront will match the best in the world. Delhi is capital of Bharat, and what I see around here, the work done by the Lieutenant Governor Vinay Saxena is a game-changing work. People of Delhi will remember it forever, that his efforts are bearing fruits and Delhi is being provided with new lungs, new power, because that was a big challenge. And I am sure more and more Delhi people will enjoy the scenic beauty. Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik addressed the tragic railway incident on June 5th. Confirming that 5 people lost their lives, 4 at the scene and 1 later in hospital. Several others were injured. He acknowledged the swift action taken by MP Shrikant Shinde, who arranged for the critically injured passengers at Chhatrapati Shivaji Nagar to be transferred from Jupiter Hospital to a private facility for better care. This incident has intensified calls for improved safety measures in Mumbai's suburban rail network, which has seen over 7,500 deaths in the past 3 years due to accidents. Want a quick summary of the government's proposed reforms. घटना घटी थी, 4 लोग मृत्यु जगह पे हो गए थे, एक अस्पताल में मृत्यु हो गया, 9 लोग जख्मी थे। हमारे वहाँ के सांसद श्रीकांत शिंदे जी ने तो छत्रपति शिवाजी रुग्णालय में जो जख्मी थे उनको, जो सीरियस थे उनको तो जुपिटर हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेके गए। तो हमारा ये कहना है कि 5,000 से ज़्यादा हर साल जो मृत्यु होते हैं रेलवे अपघात में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पैरेलल रैपिडो अपना पैरेलल जो हमारी टैक्सी है या बसेस है या हमारी एसटी है या हमारी मेट्रो है, तो हम पैरेलल ये तो सहूलियत दे ही रहे प्रवासियों को, मगर साथ साथ में अगर टाइमिंग चेंज हो जाएगा तो टाइमिंग चेंज की वजह से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि रेलवे के ऊपर जो लोड आता है कि 8 और 10 के पीक पीरियड में वो लोड कम हो जाएगा। तो हमने राज्य शासन के माध्यम से भी आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा भी हम सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे का अगर ऑफिस रहेगा तो आप 10 से 5 की बजाय 10 से 6 आप काम करो, 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ेगा अगर 1 घंटा आप लेट आए तो। हम ये सहूलियत दे रहे, तो प्राइवेट एजेंसी ने भी उसके ऊपर सोच के उन्होंने भी सहूलियत देना चाहिए, ताकि आज जो मृत्यु हो रहे हैं वो मृत्यु भविष्य में उनके स्टाफ में से भी कोई हो सकता है। घटना घटी थी, 4 लोग मृत्यु जगह पे हो गए थे, एक अस्पताल में मृत्यु हो गया, 9 लोग जख्मी थे। हमारे वहाँ के सांसद श्रीकांत शिंदे जी ने तो छत्रपति शिवाजी रुग्णालय में जो जख्मी थे उनको, जो सीरियस थे उनको तो जुपिटर हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेके गए। तो हमारा ये कहना है कि 5,000 से ज़्यादा हर साल जो मृत्यु होते हैं रेलवे अपघात में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पैरेलल रैपिडो अपना पैरेलल जो हमारी टैक्सी है।
In a shocking incident at Paras Hospital in Patna, notorious criminal Chandan Mishra from Buxar district was shot multiple times while on a parole for medical reasons. Mishra, who has several murder cases against him, is believed to have been targeted by rival gang members. Patna SSP Kartikeya K. Sharma suspects the attacker belongs to the Chandan Sheru gang. Police are reviewing CCTV footage and coordinating with Buxar police to track down the shooter. Mishra remains under medical care. इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फ़ोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो उनका 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पे है, इस पे भी हम लोग पता करवा रहे हैं कि इनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी UP Governor Anandabhen Patel, during her visit to Kolkata, distanced herself from the contentious debate on illegal Bangladeshi immigrants, stating it is a matter for the concerned authorities, emphasizing the importance of proper documentation. She remarked that individuals who appear to be Indian and have the request certification may remain in India, while those identified as Bangladeshi nationals should be repatriated. She noted that such measures are commonly practiced internationally, redirecting focus to her official responsibilities. Patel affirmed that her primary role as governor is to ensure the delivery of quality education to the public. ये विवाद में मैं पढ़ना नहीं चाहती। क्या ये काम अधिकारियों का है? अधिकारी सर्टिफिकेट देखे और उसको लगे कि बंगाली है तो बंगाल में रखे, वो लगे कि वो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश में भेज दे। पूरा विश्व कर रहा है भाई, पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ कुलाधिपति हमारा काम ये है, यूनिवर्सिटी रेगुलर चले, बच्चे अच्छे अच्छे सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और इसी वजह से हम लोगों ने 18 यूनिवर्सिटियों में A++ या तो ए नेक में हम काम किया है। और इसी वजह से बच्चों को प्लेसमेंट अच्छी मिल रही है और वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। NRI में भी हमारी 4 यूनिवर्सिटी 100 के अंदर आई है, ये हमारा काम करना है। वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमारी यूनिवर्सिटी आगे आ रही है। तो ये काम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये हर कुलाधिपति का काम है। वो सब कर रहे हैं अपना अपना काम। जो दायित्व हमारा दिया जाता है वो है। ऐसे जो विवादास्पद जो हमारा काम नहीं है, क्या हम किसी को पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हो? ये अधिकारी पूछ सकते हैं। ये विवाद में मैं पढ़ना नहीं चाहती। क्या ये काम अधिकारियों का है? अधिकारी सर्टिफिकेट देखे और उसको लगे कि बंगाली है तो बंगाल में रखे, वो लगे कि वो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश में भेज दे। पूरा विश्व कर रहा है भाई, पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ कुलाधिपति हमारा काम ये है, यूनिवर्सिटी रेगुलर चले, बच्चे अच्छे अच्छे सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और इसी वजह से हम लोगों ने 18 यूनिवर्सिटियों में A++ या तो ए नेक में हम काम किया है। और इसी वजह से बच्चों को प्लेसमेंट अच्छी मिल रही है और वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। NRI में भी हमारी 4 यूनिवर्सिटी 100 के अंदर आई है, ये हमारा
Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, speaking at the 97th Foundation Day of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) in Delhi, lauded the scientific community for their transformative contributions to Indian agriculture. He emphasized the need for farmer-centric research, calling scientists modern-day rishis and urging them to focus on natural farming, compact machinery for smallholders, and high-yield varieties of pulses and oilseeds. Chauhan announced reforms to curb exploitation in the agri-input market, including a toll-free helpline for farmers to report fake seeds and fertilizers. He also inaugurated the Viksit Krishi exhibition, released new agricultural publications, and launched MOUs to strengthen research collaborations. फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का 66 to 80 बढ़ा 1.3 मिलियन टन पर ईयर। फल और सब्जियां 80 से 90 2 मिलियन टन, 90 से 2000 6 मिलियन टन, 2000 से 2014 8.2 मिलियन टन, और उसके ऊपर अभी भी 7.5 मिलियन टन पर ईयर फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है। मैं आज आईसीआर के स्थापना दिवस पर देशवासियों को बताना चाहता हूं, मिल्क प्रोडक्शन अब हम ही तो हैं जो नस्लों में सुधार कर रहे हैं। हम ही हैं जो ऐसी पद्धतियां विकसित की है कि बछड़े ज्यादा पैदा ना हो, बछड़ी पैदा हो, ताकि दूध का उत्पादन बढ़े। अगर मिल्क प्रोडक्शन आप देखेंगे 66 टू 80 0.9 मिलियन टन पर ईयर, 80 टू 90 2.2 मिलियन टन, 90 to 2000 2.5 मिलियन टन, 2000 to 14 4.2 मिलियन टन पर ईयर, और 2014 to 25 10.2 मिलियन टन पर ईयर। अब मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि अब तो In Patna, Bihar, ADG Kundan Krishnan addressed a troubling rise in murders between April and June, attributing the spike to seasonal unemployment and financial desperation among youth. He noted that many have turned to supari or contract killings as a source of income. In response, the Bihar police has established a dedicated cell under the Special Task Force to monitor and maintain a database of non-contract killers. This initiative aims to track their movements, even post-incarceration, and prevent future crimes through targeted surveillance and coordination with the district police. हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं, तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए
सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स In Delhi, Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha delivered a keynote lecture on peace at Gandhi Smriti and inaugurated the newly developed Gandhi Smriti Art Gallery. He reaffirmed India's unwavering commitment to peace, emphasizing the country's historic role in inspiring global harmony. Citing the recent Pahalgam terror attacks, Sinha praised the Indian Army's decisive response through Operation Sindoor, describing it as a testament to India's resolve. He strongly condemned Pakistan's role in fostering terrorism, stating that terrorism is in their DNA and urging the international community to unite against such threats. Sinha also highlighted the transformation underway in Jammu and Kashmir, noting that youth are increasingly embracing development and rejecting radicalization. उस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय सेना को या भारत को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। दावे पाकिस्तान के जितने भी हों, लेकिन एक भी प्रमाण दुनिया ने न देखा न वो दिखा सका। हमारे प्रमाणों की ज़रूरत अब नहीं है कि किसी को बताया जाए। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार दिखाई पड़ा है कि भारत में निर्मित इंडिजिनस इक्विपमेंट के द्वारा भारतीय सेना ने जो पौरुष दिखाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मुझे लगता है कि इसके साथ ही बापू के दर्शन शांति, सहयोग और सद्भाव के अनुरूप ग्लोबल साउथ हो, ग्लोबल नॉर्थ हो, इसमें भी भारत शांति के प्रयास का अग्रणी देश बन गया है और पूरे विश्व को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का रास्ता दिखाने की ओर अग्रसर भी है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष की यात्रा में बापू के विचारों और दर्शन का बड़ा मजबूत आधार है। हमारी नीति कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है, हमारी नीति शांति की रही है, हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा जाए तो आज़ादी मिलने के चंद महीनों के भीतर ही पाकिस्तान ने आक्रमण वहाँ कर दिया। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई नया देश या कोई नया परिवार निर्मित होता है तो उसकी प्राथमिकता में अपने परिवार की समृद्धि, अपने नागरिकों का कल्याण होता है। लेकिन जन्म से ही पाकिस्तान, जो हमारा दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्क है, आतंक उसकी उस समय भी घोषित पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी थी और आतंक फैलाना उसने नया नहीं शुरू किया है, आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही शुरू किया है, जिसे कबायली आक्रमण हम कहते हैं। वास्तव में वो पाकिस्तानी सेना के भी लोग, बड़ी संख्या में वो लोग थे, बारामूला तक आ गए थे। उस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों ने दुनिया को दिखा दिया है। In Agartala, Tripura is emerging as a frontrunner in AI-driven governance with Special Secretary Planning and Statistics Abhishek Chandra highlighting the state's commitment to digital transformation. Speaking at the conclusion of a 3-day workshop titled Generative AI for Impact, Smart Tools for Smarter Governance, Chandra noted that 65 officials participated in the training, which focused on practical applications of AI such as summarization, forecasting, prompt engineering and data interpretation using Python. He emphasized that this module is just the beginning, with future programs planned in collaboration with institutions like IIM Ahmedabad, ISP and EDI. Chandra stressed that generative AI should be viewed as an essential governance tool, not merely a technical add-on, and revealed that Tripura aims to include officials from other states in upcoming training initiatives. प्रोग्राम जो हुआ है वो 65 लोगों के लिए हुआ है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए 65 लोगों के लिए हुआ है क्योंकि ये ट्रेनिंग हॉल जो है वो 65 लोगों से ज़्यादा नहीं ट्रेन कर सकते हम।
हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं। हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं स्टेट में, जो आपने सुना हुआ है, IIM अहमदाबाद, ISB, EDI। और अब ये AI का जो मॉड्यूल है, ये पहला कोर्स है जहाँ पे ऑफिसर्स को और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट किस तरह से यूज़ करेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लोग यहाँ से जो हमें फीडबैक मिला है, हम वेरी सून इसका जो है फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 जो AI बेस्ड ट्रेनिंग है और इसका यूसेज हम लोग कैसे यूज़ करेंगे हर डिपार्टमेंट में, वो हम इसका जो है मॉड्यूल बनाएंगे। टारगेटेड बेस्ड अप्रोच, जैसे अभी जो है हाल ही में ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सेंसस के लिए आने वाले हैं, तो AI का इसका क्या यूसेज है, AI में हम लोग सेंसस को किस तरह से हम इसको बेटर यूज कर सकते हैं, वो चीज जो है देखने के लिए मृत्युंजय सर जो है वो कल आ रहे हैं। हमसे बात करके जो है वो यहाँ पे जो है सेंसस के ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। हम लोग 9 सर्वेज, ये कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में, 9 सर्वेज साइमल्टेनियसली हम लोग कर रहे हैं यूजिंग व्हाट्सएप, AI एंड जेनरिक सर्वेज। हमारे पास, हम छोटे स्टेट है, हमारे पास जो है रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है, इसलिए AI का जो यूसेज होगा विद द हाईएस्ट इम्पैक्ट एंड लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ये लोग हम तभी कर सकते हैं, हम लोग सब यही कर सकते हैं जब AI का यूसेज जो है पेनिट्रेट करके अच्छे से हम लोग इसको फील्ड पे यूज करें। आपने खुद ही सुना है कि हम लोग जो है कितने आगे हैं। अगर सेक्रेटरी मौसमी भेज रहे हैं डायरेक्टर जनरल को यहाँ पे और 4 ऑफिसर्स कि सीखिए, त्रिपुरा से सीखिए और आगे इसको यूज करें। हमसे अभी बात करके हम लोग मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं बाकी स्टेट्स के लिए कि मौसमी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और नीति आयोग इसको जो है यूज कैसे करे बाकी स्टेट्स के लिए। ये रिपोर्ट राइटिंग मैं कर रहा हूँ, हमारे दफ्तर के लोग ऑफिसर्स कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुआ है वो 65 लोगों के लिए हुआ है। और In Agartala, Tripura Director General of Central Statistics MOSPI N.K. Santoshi commended the Directorate of Economics and Statistics for organizing a 3-day AI training program aimed at enhancing governance through technology. Speaking at the workshop titled Generative AI for Impact Smart Tools for Smarter Governance, Santoshi noted that around 70 participants, including officers from the Ministry of Statistics and Program Implementation, were in attendance. He praised Tripura's proactive approach to capacity building, calling the state ahead of the curve in adopting generative AI for public administration. The training focused on practical applications such as summarization, forecasting, prompt engineering, and data interpretation using Python. की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और आज के 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जनरेटिव AI के ऊपर, और 70 के करीब पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऑफिसर्स भी यहाँ पे आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री की तरफ से टूल है जिसके बारे में सब लोगों को जानना चाहिए। ये इतना पावरफुल टूल है कि आप अपने डेटा से इमीडिएटली रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं और ये रिपोर्ट बड़ी प्रिसाइजली होती है, एक्यूरेट होती है, और उसको आप अपनी डिफरेंट पॉलिसीज के लिए आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि सब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द AI ML टेक्निक्स देयर, तो दीज आर द न्यू टूल्स, न्यू टेक्निक्स, एवरीबडी शुड लर्न दिस थिंग्स। और त्रिपुरा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अपने सारे ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग देके और नई टेक्नोलॉजी को उसको यूज करके अपने फ्यूचर के लिए आप कैसे डेटाबेस क्रिएट करें और कैसे इस टेक्नोलॉजी यूज करें। त्रिपुरा गवर्नमेंट इस मामले में सभी स्टेट At the valedictory session of IIT Jammu Summer School Internship 2025, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah addressed concerns about the perceived disconnect between IITs and local communities. He acknowledged the common belief that the national level entrance exam limits opportunities for local students. However, he emphasized that having an IIT within one's own state or union territory serves as a powerful motivator for local youth to aspire and prepare for admission. Abdullah praised IIT Jammu's growing impact and encouraged broader participation from students across Jammu and Kashmir. Here, it's an all-India competitive entrance exam, and therefore, local students will not benefit, local people will not benefit. But the truth is far from that. Yes, it's an all-India competitive exam, but having an IIT in your own state or union territory is actually an encouragement
to sit those exams and to try and get a seat in that particular school of learning. But more importantly, it also creates opportunities like the summer school. And as Dr. Navneet Kumar rightly pointed out, 1/3 of the students participating in this summer school today are from Jammu and Kashmir. So it's not as if IIT Jammu is closed to the students of Jammu and Kashmir. In fact, if anything, it's given the students of Jammu and Kashmir new opportunities, new ideas, new horizons. Perhaps going ahead, this will open doors to further learning, both in IIT Jammu and other IITs across the country. I think one of the misgivings that people have had about IITs everywhere, and I'm sure IIT Jammu is no different, is that these IITs actually will bring nothing to the local population. To get a seat here, it's an all-India competitive entrance exam, and therefore, local students will. In Patna, Bihar, RJD leader Shakti Singh Yadav reacted to Chief Minister Nitish Kumar's announcement of 125 units of free electricity by asserting that the move was influenced by the presence of leader of opposition Tejashwi Yadav. Yadav stated if a leader of opposition like Tejashwi Yadav is there, then Nitish Kumar will definitely have to bow. The credit for this should go to Tejashwi Yadav only. The remark comes amid rising political tensions ahead of the state elections, with RJD positioning Tejashwi as the driving force behind the pro-people policies. नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये ताकत विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के संकल्पों में है, उनके प्रणों में है। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीछ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। जिस तरह से बुजुर्गों का पेंशन, विधवा और विकलांगों का पेंशन को 1500 कहे थे, तो 1100 रुपया नीतीश कुमार ने घोषणा किया। यह तेजस्वी जी के दृढ़ निश्चय और प्रण और गारंटी का प्रतिफल है। अभी रोजगार नौकरी पर भी इनको हमने तेजस्वी जी ने अपने पीछ पर ला करके खिलाया है। अभी और इंतजार करिए, माई बहन मारी योजना भी लागू इनसे करवाएंगे कान पकड़ करके, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन वाला लीडर तेजस्वी यादव है। इनके निर्णयों में जो सार्वभौमता है, उसका लाभ हर वर्गों को मिलने का साफ साफ फायदा दिखता है। तो यही ना चाहिए। गरीब बिहार जो सबसे पिछले पैदान पर है, उसको एक सहारा की आवश्यकता है। वो सहारा का रोड मैप तेजस्वी जी ने खींचा और सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़ना पड़ा। आज लाख ये कर ले, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है, बिहार वासी जान गए हैं कि तेजस्वी यादव ये बंदा जो कहता है वो करता और करवाता। तो नीति That's the wrap of the Inside News.